Hi students, I am Jasmine Farad and welcome you on my channel. उम्मीद करती हूँ अभी तक जो भी मैंने सिखाया है रिजोल्यूशन, जितना भी सिखाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो फिर से मेरे वीडियोस देखो, थ्योरेटिकल पार्ट देखो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। या कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। तो लेट्स बिगिन। आज हम नया प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। Sangeeta, Anita and Smita are partners sharing profit and loss is 2:2:1. That is always must, because whenever we need to distribute general reserve, profit and loss, we need this ratio 2:2:1. This is the balance sheet. They decided to dissolve on 31st March 2019. So this is their balance sheet. That means they have a asset and these are the liability. Now the main is the liability. What here? See, this is the external liability. This we can call external liability. And now this is the Sangeeta's loan. Now who is the Sangeeta? If you read the problem here, immediately we come to know Sangeeta is the partner. So in my first video, I already explained you, whenever they give partners loan, we have to open separate account. So now it's time to open Sangeeta loan account. Why we need to open separate account? Because after selling out this asset, whatever cash we will get, that we need to distribute first this two external liability. पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को देंगे, बिल्स पेबल को देंगे, और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है तो हम पे करेंगे संगीता को। इसलिए हमें फॉर अ टाइम भी संगीता का लोन है वो अलग सेपरेट अकाउंट में बनाना है। आई होप आपको समझ में आया। एंड दिस आर द एडजस्टमेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट चेक करेंगे। नाउ बिफोर दैट मेक अ चेंजेस हियर। संध्याज लोन गलती से दिया है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे संगीता लोन दो। प्रिंटिंग मिस्टेक है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले आप ये कर लो चेंजेस। इंस्टेड ऑफ संध्या लोन राइट संगीता लोन, बिकॉज संगीता का लोन हमने लिया है, ठीक है, तो ये गलत है। तो संगीता लोन डिस्चार्ज। चलो विल बिगिन। दिस इज अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, and this is a one more extra account, Sangeeta loan account. Just I explain why we need to open Sangeeta loan account separately, and this is all you know. Realization अब पता होगा, दो प्रॉब्लम किए हमने। Then partners capital and cash, these three are the most, and now this is a new one. Okay, now we'll do first what we have to do first. Transfer all assets and liability in realization account. So let's begin with the asset. See, these are all assets, land up to this. These are all assets. We never transfer bank or cash account in realization, because इसके लिए हमने separate account open किया है और ये हम सेल करने वाले हैं। हम कैश या बैंक कभी सेल नहीं करते, है ना? कभी सुना है क्या कैश मैंने सेल की? नहीं। So never transfer this in realization account. So first transfer this asset show which side? Asset show debit side. So we will transfer asset debit side. See here, check this all amount up to 15,000. See, up to 15,000. Transfer to realization debit side. Make a total. Write outer column 3,85,000. इसका मतलब क्या है? फर्म के पास 3,85,000 का असेट है जो वो सेल कर सकते हैं, और उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे ये लायबिलिटी पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ व्हाट अबाउट बैंक? ऑफ कोर्स वी ओपन अ सेपरेट अकाउंट, सो डेबिट अगेन हियर, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 डन। सो वी फिनिश आवर असेट साइड, पूरा फिनिश कर दिया। हाँ, पेपर में भी ऐसे कट किया करो पेंसिल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ विल मूव टू द लायबिलिटी। Capital is given, Sangeeta, Anita and Smita. So already we open a separate capital account. Now credit asset show debit side, so liability show always credit side, okay? So this will go credit side. So see here, by balance brought down opening balance 60,000, 40,000 and 30. So this is also done.
Sangeeta's loan account, as I told earlier, already we open a separate account. So we'll write here. But which side? Of course, they have given liability side. Liability show credit side. So we'll also write here credit side. Then Sangeeta's loan is 1,20,000. Now the next is creditors and bills payable. Now what we have to do? See, this is also we finished. Now what about these two external liability? Yes, as usual, transfer to realization credit side. You can see transfer 1,40,000. So we finish this and this. Before moving to the adjustment, please check out whether we have done all posting. सब आइटम चेक करो कि हमने सब पोस्टिंग की है क्या. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. ये आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन लाया है तो आपको तकलीफ नहीं देखने की, सामने ही आपके है. तो ये तो हो गया. नाउ विल स्टार्ट दिस पोस्ट एडजस्टमेंट. द असेट रियलाइज मीन्स सेल आउट. लैंड रिकवर्ड 1,80,000, goodwill 75, loan and advance 12,000 and 10% debt as a bad debt. ठीक है, चलो विल स्टार्ट. नाउ ये सब का इफेक्ट एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. तो कौन से अकाउंट में जाएगा? सी दिस इज बेसिकली वी हैव अ 3 अकाउंट. ठीक है, मेन, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश. तो बताओ इसमें से कौन सा इफेक्ट जाएगा? सबसे पहले तो सोचना है ये तीनों में से यहाँ पे एडजस्टमेंट में पार्टनर्स का नाम नहीं दिया है कि संगीता पेड, अनीता पेड, स्मिता टेकन, नो. तो इसका अकाउंट तो इसमें तो इफेक्ट जाएगा ही नहीं. तो क्या बचा? रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट. So of course, two effects will go. One is realization, second is cash. So move to the realization account. Now the again question is that whether debit or credit. So if you apply the rule, realization is a nominal account. See, again and again I am telling you, realization account is a nominal account. Debit the expenses and credit the income and gain. See, credit side, income and gain. So now this is the time to sell out the land. लैंड उनकी कितनी थी? 2,10,000. बट उन्होंने रिकवर्ड कितना किया? 1,80,000. मतलब उनको पैसे कितने मिले बेचने के बाद? 1,80,000. सो दिस इज द इनकम. सो इनकम वी हैव टू राइट क्रेडिट साइड. सो दिस ऑल आर गुडविल ऑल्सो दे सेल 75, लोन ऑल्सो दे रिकवर्ड 12,000 एंड सी आई हैव गिवन हियर ऑल. अब एक साथ करो, बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. दो प्रॉब्लम में आपको समझ में आया होगा. तो अब नाउ मेक अ कॉमन एंट्री. एक बार ही कैश लिखो क्योंकि एक इफेक्ट जाएगा कैश में. रियलाइजेशन का अकाउंट के इसमें कैश का नाम आएगा और कैश के इसमें रियलाइजेशन का नाम आएगा. तो रियलाइजेशन के इसमें कैश लिखो बिकॉज दे आर गेटिंग कैश एंड दिस इज ऑल इनकम फॉर देम. सी 1,80,000. देन गुडविल दे गेट 75,000. जो भी उनका लोन एंड एडवांस उन्होंने दिया था वो भी वसूल किया उन्होंने, तो इसके भी पैसे आए 12,000. एंड व्हाट अबाउट दिस डेटर्स 10% बैड डेट्स. तो ये डेटर्स थे, मतलब 1,25,000 उनको पैसे मिलने वाले थे, बट 10% बैड लक, 10% उनको बैड डेट्स हो गया. तो 1,25,000 का 10% कितना आता है? 12,500. वो माइनस करो. तो वसूल कितने हो गए डेटर्स से? डेटर्स मतलब कस्टमर. कस्टमर से वसूल कितने हो गए? 1,12,500. यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है और खुद एक बार करो. एंड आई होप मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अपने नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर ही बैठे हो. ठीक है. So this all is the income for the firm. So we write credit side total is 3,79,500. You can write here or you can write here. कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यहाँ पे भी लिख सकते हो. ठीक है. और जिसको रूल समझ में नहीं आता है उनको मैंने एक ट्रिक बताई है सिंपल सी. ये लैंड, गुडविल, लोन, डेटर्स सबने कहाँ से एंट्री की थी? लैंड, गुडविल, डेटर्स एंड लोन. इन्होंने एंट्री कहाँ से की थी? डेबिट से. तो बाहर कहाँ से जाएगी? क्रेडिट से. है ना. हम थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो एक तरफ से एक डोर से एंट्री करते हो डेबिट से, दूसरे तरफ से बाहर निकलते हैं. तो यही रूल हमें अप्लाई करना है. राइट. आई होप समझ में आया है. ओके. नाउ नेक्स्ट विल मूव. नाउ सी सेकेंड इफेक्ट. ऑफ कोर्स कैश के डेबिट में. सी दिस इज द सेकेंड इफेक्ट. Then again I am to tell you, see here 3,79,500. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर 3,79,500 कैश है तो कैश के डेबिट में
We'll write here 3,79,500. Every adjustment has a two effect. If one effect is debit, another effect will credit. If one effect is credit, another effect will debit. See, पैसे मिले, इनकम था वो, तो उनकी कैश इंक्रीज हो गई. So that is why we have written here debit side plus and minus put here. जिनको रियल अकाउंट का रूल समझ में नहीं आता है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, तो प्लस एंड माइनस की हैबिट डालो, कैश इंक्रीज हो गई, सो वी राइट डेबिट साइड. So next, now Sangeeta took plant at book value. Now this is the second. Sangeeta took. अब सबसे पहला तो कौन से तीन अकाउंट में से दो अकाउंट में जाओगे? अब यहाँ पे तो संगीता का नाम लिया है, संगीता इज अ पार्टनर, तो एक पार्टनर्स अकाउंट में तो ऑफकोर्स इफेक्ट आएगा, संगीता का नाम बताया है. Whenever they will give name of the partner, one effect with 101% will go partners capital. So this is done. ये तो हो गया. Now second is plan taken. तो प्लान किधर लिखा है हमने? यहाँ पे लिखा है. तो रियलाइजेशन के डेबिट में उसने एंट्री की है, तो बाहर तो उसको निकलना है यहीं से. तो सेकेंड इफेक्ट विल गो रियलाइजेशन. कैश का सवाल ही नहीं है, कैश तो मिली नहीं है, वो लेकर गया घर पे, संगीता घर पे लेकर गई. तो दिस टू अकाउंट विल गेट इफेक्टेड. पहले समझ लो कि कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट करना है. ठीक है, एक बार वो हो गया ना तो डेबिट क्रेडिट फिर आसानी से आ जाता है. नाउ सी हियर, नाउ व्हाट विल डू, प्लान हियर डेबिट, so now it will be a credit. रियलाइजेशन के अकाउंट में पार्टनर्स का लोन ना, पार्टनर्स कैपिटल का नाम, एंड पार्टनर्स किस में रियलाइजेशन का नाम. सो विल राइट हियर बाय संगीता कैपिटल एंड हाउ मच, बुक वैल्यू. देखो बुक में कितनी वैल्यू दी है, बुक वैल्यू मीन्स ओरिजिनल वैल्यू. तो यस हियर 20,000 ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जो बुक में दी है 20,000. देन सो बाय क्रेडिट बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनकम फॉर द फर्म. एंड ये नई रूल समझ में आ रहा है तो अपना एज यूजुअल प्लान ने एंट्री की थी डेबिट से पोस्टिंग के वक्त, अब वो जब लेकर बाहर जा रहा है तो दैट विल गो क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में संगीता कैपिटल, तो संगीता कैपिटल के डेबिट में रियलाइजेशन 20,000. सी, credit, debit. One effect will be a credit, another effect will debit. Very simple. This is a very simple chapter. Now we'll move to the next. Creditors and bills payable paid at 5% discount. As I told you, now we sold out all the assets. ये सब asset हमने बेचे हैं. देखो यहाँ पे लिखे हमने. तो asset का काम तो खत्म हो चुका है. Now we are getting a cash. कैश मिल चुकी है हमें. अब टाइम क्या है, हमें ये पे करना है. Because without paying external liability, no one can dissolve the firm. They have to pay their external liability, and then if anything left, they have to pay internal liability. Internal liability मतलब क्या, पार्टनर्स का लोन. वो भी तो है हमारे पास संगीता का लोन, लेकिन वो बाद में देखते, पैसे बचे तो सोचते. ठीक है, नाउ फर्स्ट विल पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. नाउ फर्म हैज टू पे दिस टू, so this is the expenses for the firm. So debit expenses, क्रेडिट इनकम. जब हमने असेट सेल किए तो हमको पैसे मिले, तो वी राइट हियर क्रेडिट साइड. नाउ दिस इज द टाइम टू पे, तो एक्सपेंसेस हमारे, तो विल राइट डेबिट साइड. तो नाउ विच टू अकाउंट विल गेट इफेक्टेड, एकदम इजी है. यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दिया है क्या कि पार्टनर्स ने बिल्स पे किया है, क्रेडिटर्स पे किया है? नो. तो पहले सबसे पहले यस एलिमिनेशन राउंड कट कर दो इसको. नाउ व्हाट लेफ्ट, रियलाइजेशन लेफ्ट एंड कैश लेफ्ट. ठीक है, तो ये कैश लेफ्ट, दिस टू अकाउंट्स लेफ्ट. तो करो इसमें एंट्री. रियलाइजेशन विच साइड करोगे, अगर ये दोनों ने एंट्री क्रेडिट साइड से की है तो बाहर डेबिट से निकलेंगे. एंड हाउ मच, सी टोटल कितना था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 1,40,000, तो 1,40,000 लिखो. इनटू कितना परसेंट डिस्काउंट हमें मिला है, 5%, तो 7,000 की छूट मिली है हमें, तो हमको पूरी 1,40,000 पे करने की जरूरत नहीं है, उसमें से माइनस करो 7,000. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ने बोला चलो डिस्काउंट ले लो हमारे तरफ से, तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 7,000. तो अब हमें पे कितना करना है, सिर्फ 1,33,000. सी, कभी कभी ट्रिकी एडजस्टमेंट देते, रेडीमेड अमाउंट नहीं देते. वो चाहते तो यहाँ पे दे सकते थे कि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल फॉर ₹1,33,000 यहाँ पे लिखते थे, बट उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी यूज किया है. क्या बोला है कि जब भी ये पे करेंगे 5% डिस्काउंट से पे करो. तो हमने 5%, 1,40,000 पे 5%, 7,000 आता है, कैलकुलेट करके देखो. ठीक है, एंड फिर ये 7,000 माइनस करो, तो हमें अब 1,40,000 नहीं पे करना है, हमें सिर्फ 1,33,000 पे करना है. ठीक है,
तो रियलाइजेशन के डेबिट में अगर कैश है तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन है। सी, कम हो गई ना कैश, हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे कर दिए, हमने मतलब पार्टनर्स ने, तो उनकी कैश कम हो चुकी, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा। बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, कैश चली गई है, गोज आउट हो गई है, so that is why we write credit side. I hope you are getting it. नहीं समझा है तो वीडियो पॉज करो, फिर से बाद में रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक है। ओके, नाउ वी फिनिश दिस वन आल्सो। नाउ दिस इज अ संध्या लोन, आपने चेंज किया रहेगा, ये संध्या नहीं है, ये संगीता लोन है। सी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पे आपने चेंज किया होगा। तो संगीता लोन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब पे करना, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। आपको संगीता ने फर्म को लोन दिया था, तो कोई भी फुकट में थोड़ी लोन देता है, बैंक भी लोन देती तो इंटरेस्ट तो लेती है, तो वैसे संगीता ने भी लोन दिया था फर्म को। कितना दिया था? 1,20,000 प्लस उसने बोला कि ठीक है मुझे अब इंटरेस्ट भी चाहिए 6,000, तो इस तरह से फर्म ने क्या किया है, संध्या का लोन पे किया है। चलो बताओ कौन से दो इफेक्ट आएंगे, जल्दी से देखते आपको आता है क्या। देखो, सबसे पहला एक इफेक्ट तो आएगा, सिंपल दिया है, डिस्चार्ज मतलब पेड। जब पेड मतलब कैश से ही पेड करते, तो एक इफेक्ट तो भैया पक्का कौन सा आएगा, एक इफेक्ट तो आएगा, एक इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट में, ठीक है, आपको आपको दिख रहा है कैश अकाउंट। एंड दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? सी, रियलाइजेशन में तो हमने संध्या की एंट्री की ही नहीं थी, सॉरी संध्या नहीं, संगीता, संगीता की तो एंट्री की ही नहीं थी हमने, है कि यहाँ पे संगीता ने किधर से एंट्री की थी क्या पोस्टिंग के वक्त, तो रियलाइजेशन तो नहीं आएगा। पार्टनर्स का भी नाम नहीं दिया है कि संगीता लोन टेकन बाय अनीता और स्मिता, तो पार्टनर्स का भी नहीं आएगा। कैश तो एक इफेक्ट आएगा क्योंकि पेड किया है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है संगीता का, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा संगीता लोन में। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो आप, नो कंफ्यूजन प्लीज, ध्यान से देखना है। फर्म डिस्चार्ज द लोन मतलब फर्म ने लोन, संगीता का जो लोन है वो पे किया है, पे किया है मतलब एक अकाउंट इफेक्ट जाएगा कैश में, और दूसरा संगीता का लोन हमने अकाउंट ओपन सेपरेटली किया है, तो एक इफेक्ट जाएगा संगीता का लोन में। डन। नाउ कैसे जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? तो नाउ सेम अप्लाई रूल करो, संगीता यहाँ पे क्रेडिट गिवर है ना, लेकिन अब संगीता को पैसे मिलने वाले, तो संगीता रिसीवर है। अच्छा, रूल नहीं समझता है तो जाने दो, हमारा रूल अप्लाई करो थिएटर वाला, मूवी वाला। अगर संगीता का पोस्टिंग के वक्त हमने क्रेडिट में एंट्री की है, तो जब हम उसको पे करेंगे तो वो किधर से बाहर आएगी, डेबिट से। और क्या लिखोगे? आपको संगीता के इसमें कैश का नाम, कैश के इसमें संगीता लोन अकाउंट, सी टू कैश 1,26,000. Why 1,26,000? Because read the adjustment. They say paid the loan along with interest. 6,000 इंटरेस्ट था, इसलिए हमको यहाँ पे 1,26,000 लिखना है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे संगीता को पैसे मिले हैं, so that is why डेबिट द रिसीवर। नाउ सेकंड इफेक्ट, संगीता के डेबिट में अगर कैश है तो कैश के क्रेडिट में संगीता लोन है, तो संगीता लोन, डोंट राइट संगीता कैपिटल, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। संगीता लोन, जो अकाउंट में हमने इफेक्ट किया है वही अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखना है। तो संगीता लोन पे किया है फर्म ने, तो पैसे कम हो गए। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पे किया था, पैसे कम हो गए। यहाँ पे संगीता लोन पे किया, पैसे कम हो गए, माइनस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझा है तो पॉज करो, फिर से एक बार देखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो वी फिनिश, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द संगीता लोन, खत्म कर देते संगीता का मैटर। तो नाउ क्लोज करो, विच साइड कम्स एवी, ऑफकोर्स दिस साइड, तो यहाँ पे 6,000 का बैलेंस आया है ना। सो यह बैलेंस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। संगीता 6,000 क्रेडिट में आया है क्योंकि संगीता का लोन हमने पोस्टिंग के वक्त 1,20,000 लिखा था, लेकिन जब पे करने का वक्त आया तो उसको हमने 6,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दिया, तो पे करते वक्त 1,26,000 आया, तो टैली तो नहीं हो रहा, तो डेबिट की टोटल हेवी आ रही है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 6,000 बचता है। तो ये 6,000 क्या है,
कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे? तो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे? देखो, संगीता लोन के क्रेडिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में संगीता। बट क्यों हम इंटरेस्ट यहाँ पे करेंगे? तो रूल अप्लाई करो, रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फर्म के लिए 6000 एक्सपेंसेस हो चुका है, क्योंकि लोन तो लिया था उन लोग ने 1,20,000 का, बट जब पे करने की बारी आ गई तो उनको 1,20,000 प्लस 6,000 एज इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो 6,000 उनके लिए, फर्म के लिए तो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, so that is why we write here debit side interest 6,000. Done? इसके 3 इफेक्ट आए हैं, so that is why I am always telling adjustment has a minimum 2 effect, minimum 2, maximum आपके सिलेबस में 3 है, 4 नहीं है, डोंट वरी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, और वो मैक्सिमम 3 जो है वो बहुत रेयरली है, ठीक है। So now this is a 6,000. Now we'll stop, next we'll do the next one. There was a contingent liability in respect of bill 1 lakh, which was under discount. Out of them, 20,000 become insolvent. Then, so now this is a new concept for you, contingent liability. Then there was a contingent liability. Now ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको पहले समझना है व्हाट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो पहले पेन उठाओ और लिख लो कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या। Contingent liability is a liability or potential loss that may occur in future depending on outcome of specific event. समझ में आया? ये 11th में हमने देखा है, ठीक है। चलो मैं सिखाती हूँ। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी होती है जो मे बी अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो पे करना पड़ेगी, वरना नहीं। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, कंपनी में आपके वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए फिर आपको नुकसान भरपाई कॉम्पेंसेशन 1 लाख देना पड़ा। तो इट्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर। आपने पहले ही सोचा था क्या कि किसी का एक्सीडेंट होगा और कंपनी को 1 लाख पे करना पड़ेगा? नहीं, ये फ्यूचर पे डिपेंड है कि मे बी एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी नहीं। तो आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगी या नहीं, तो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज अ पोटेंशियल लॉस, फ्यूचर लॉस दैट मे ऑकर, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखो, ये अब कोरोना वायरस से भी बहुत सारा नुकसान है, बहुत सारी ऐसी अब आगे फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी, बहुत सारे वर्कर्स को हमें आगे की सैलरी देना पड़ेगी या नहीं देना पड़ेगी, ये सब कुछ आगे फ्यूचर पे डिपेंड है। अब अभी अब कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 महीने के बाद क्या होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, मे ऑकर मे नॉट ऑकर, ठीक है। तो वैसे ये वहां पे एक लायबिलिटी थी 1 लाख की, जो उसमें से 20,000 का जो होल्डर था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? बेचारा कंगाल हो गया। तो अब फर्म को इसको पैसे पे करने हैं, तो पे करने हैं दैट मीन्स एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और पे करने हैं मतलब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऑफ कोर्स कैश में। तो 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन में, विच साइड? डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, हमको अचानक पे करना पड़ रही है, लायबिलिटी है ना। तो दिस इज एक्सपेंसेस, सो विल राइट हियर टू कैश एंड दैट। ब्रैकेट में यू कैन राइट कंटीजेंट लायबिलिटी। कितनी पे करना पड़ रही है? 20,000, क्योंकि जो एक पर्सन था वो कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो फर्म को अब उसे क्या करना है? पैसे पे करने 20,000। फिलहाल 20,000 करने, टोटल 1 लाख थे, बट यहाँ पे उन्होंने दिया है फिलहाल आउट ऑफ देम 1 होल्डर बिकम इंसॉल्वेंट, तो फिलहाल 20,000 पे किया। नाउ सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट में अगर कैश है तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन है। सी कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी पे की, ये पे किया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, संगीता का लोन पे किया, एंड नाउ उन्होंने लायबिलिटी भी पे की। देखो जितने पैसे बेचारों के जमे थे उसमें से ये उन्होंने इतना सारा क्या किया? पे किया, ठीक है। सो नाउ दिस इज फिनिश, हो गया, ऑलमोस्ट वी फिनिश। अब एक बार चेक करना है,
असेट सब सेल आउट हो चुके हैं। लायबिलिटी ये तो हमने पे कर चुके 5% डिस्काउंट से। देखो यहाँ पे संगीता का लोन भी हमने यहाँ पे पे किया। देखो डिस्चार्ज 6000 इंटरेस्ट देके भी पे किया। तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल लायबिलिटी भी पे कर दी हमने। तो फिनिश, सब कुछ हो गया हमारा। जितने लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी उतने लोगों ने यहाँ से एग्जिट की। सी देखो यहाँ से ये दोनों ने एंट्री की थी, यहाँ से ये दोनों ने एग्जिट किया। यहाँ से इतने लोगों ने क्या किया था एंट्री, इतने बाहर आ गए। तो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। व्हिच कम्स हेवी साइड, ऑफ कोर्स दिस साइड। आई टोल्ड यू 99% रिजोल्यूशन में लॉस ही आता है, इसलिए तो फॉर्म बंद करते हैं हम लोग। सो दिस इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन। बुक में चेक करो आंसर करेक्ट है क्या, 4500। देन नाउ कहा क्या करना है, दिस इज द लॉस फॉर द फर्म, so it distribute among the partners. If you credit, then partners debit. Distribute करो, you know the ratio, 2:2:1 है ना। रेशियो दिया है पहले इसमें, तो रेशियो तो आपको अब डिवाइड करने आता होगा कैसे करना है हमको, ठीक है। नाउ क्लोज द स्मिता लोन। स्मिता का लोन क्लोज करो। 30 दिस कम्स हेवी साइड। 30 में से 900 माइनस करोगे, हाउ मच लेफ्ट, 29,100। सेम अबाउट अनीता। अनीता 40,000। क्लोजिंग आना चाहिए अब 1,800। नो मोर एक्सप्लेनेशन। संगीता क्लोज करो। अगेन हियर बैलेंस, सबका बैलेंस डेबिट में ही आया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस वी हैव टू ट्रांसफर कैश अकाउंट। तो राइट हियर टू कैश, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो पार्टनर्स के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में पार्टनर्स। देखो ये सब अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए, ठीक है। बिकॉज हियर सी संगीता अनीता स्मिता का बैलेंस डेबिट साइड आया है, दैट मीन्स संगीता अनीता एंड स्मिता आर द रिसीवर, so we put credit side. Done. So now close the account. टैली हो गया। टैली हो गया मतलब हमारा करेक्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया है। ये इसमें हमने क्या देखा, पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने अलग से अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। बाकी तो एज यूजुअल हमारा था कंटीजेंट लायबिलिटी। तो एग्जाम के वक्त है ना, ये जो अलग अलग पॉइंट है ना, एक बार रिपीट कर किया करो। पुट अ टिक मार्क। अभी तो आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन जब टेक्स्ट बुक आएगा तो हर एक प्रॉब्लम में जो एक कुछ अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको स्टार मार्क करना है। तो while going to the exam, appear for the exam, एक बार उस पर नजर घुमानी है कि क्या है, बाकी का तो हमें आता है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।